پہلے ہم لوگ نارملی اپروچ کر رہے تھے سورہ بقرہ، تو سب کو معلوم تھا کل لاسٹ ٹائم کون سی آیت تھی، مگر آج کیونکہ اب بیچ میں جا رہے تو میں 2-3 منٹ دوں گا، لوگ جو ہے اپنا سیٹ کر لیجیے، قرآن کھول لیجیے اس حساب سے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر مارج۔ سورہ الاسراء، سورہ نمبر 17۔ کوئی اوپن کر سکتے سورہ نمبر کون سا بولے تم؟ 17 آیت نمبر 66۔ مگر میں یہ چاہ رہا تھا کہ مطلب کلاس کے لیے کھول کے ڈسکشن تو میں کر لوں گا، ہر ایک بھی اپنے سامنے قرآن کھولیے اور قرآن سامنے رکھیے، چاہے وہ فون میں ایپ کے ذریعے یا فزیکل قرآن ہے تو اس آیت پہ جائیے، ورنہ آڈیو سے ڈسکشن میں سننے سے بات الگ رہتی، اور خود وہ آیت سامنے کھول کے اپنے نظر سے پڑھنے سے آپ کو آیت کی کمفرٹیبلٹی الگ ہوتی۔ تو جس کے پاس بھی قرآن نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ ٹائم دے رہا ہوں تاکہ وہ لوگ اس آیت کو کھولے۔ کئی بار جلدی میں رہتے ہم لوگ شروع کر دیتے ڈسکشن اور پھر لوگ چھوڑ دیتے اور سننا شروع کر دیتے، اس لیے میں تھوڑا سا ٹائم دیا اور میک شیور کر رہا ہوں کہ سب کے پاس ایٹ لیسٹ فون پہ منیمم تو ایپ رہتا، یا اگر گھر میں ہے تو آپ سب لوگ میرے کو ذرا کنفرم کر دیجیے کہ آپ لوگ کھول لیے ہیں، آپ کے سامنے قرآن سورہ نمبر 17 آیت نمبر کھولیے عادل بھائی، آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 8 66۔ آیت نمبر کون سی؟ ہماری آواز کلیئر نہیں آ رہی آپ؟ اچھا اب آ رہی 66 آیت نمبر 66 اوکے آیت نمبر 66۔ اب باقی سب بھی ذرا آپ لوگ اوکے کنفرم کر دیجئے کہ سب کے پاس جو ہے وہ قرآن کھول دیا یا اور تھوڑا ٹائم ویٹ کرنا کیا؟ کھول دیا عادل بھائی، کھول دیا کھول عادل بھائی، ہاں کھول دیا۔ میں بھی اوپن کر لیا۔ ہاں چلیے، تو کوئی پڑھیے، پھر سیکنڈ ٹائم میں پڑھتا ہوں۔ 66، 67، 68، 69 تک پڑھنا۔ میں پڑھ لوں کیا؟ ہاں کوئی بھی پڑھ لیجیے۔ ہیلو عادل بھائی، کون سا بولے آپ؟ 66 66 سے 69 تک میں پڑھنا ہے کیا عادل بھائی، یا کوئی اور پڑھ رہے ہیں؟ مرضی کوئی بھی پک کر سکتے، آپ کی مرضی، ٹھیک ہے پڑھیے آپ۔ میں پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، ان تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ 67۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچاتے ہیں جنہیں تم پکارتے تھے، سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ تعالیٰ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ 68۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو۔ 69۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہوائیں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبا دے، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دوا پیچھا کرنے والا کسی کو نہ پاؤ۔ شکریہ۔ ہوگا دل بھائی؟ تو میں شکریہ، تو اب میں پڑھوں گا تھوڑا سا بریک کر لیتے ہوئے اور تھوڑا سا اوور ویو دیتے ہوئے، تاکہ وہ آیتیں پھر دوبارہ
मेरे से सुनिए ट्रांसलेशन, और ताकि फिर थोड़ा बैकग्राउंड के साथ ट्रांसलेशन करेंगे, फिर उसके बाद में गहराई की तफसीर में जाएंगे। तो बेसिकली ये आयतें जो है उसका उस टाइम को बता रहे जब लोग सफर करते थे शिप्स में, और शिप्स में जब आप शिप में हैं और समुद्र के बीच में हैं और एकदम तूफान आ गया, तेज बारिश हो, तो आप शिप भी डूब जाती थी, आपका माल भी डूब जाता था और आप भी मर जाते थे। तो जब ऐसे टाइम पे क्या करते थे, लोग तड़प तड़प के पुकारते थे अल्लाह को कि अल्लाह बचा ले, ये समुद्र से निकाल ले, अब की रात निकाल ले, आज कैसा तो भी मेरे को बचा ले। तो फिर अल्लाह ताला उनकी दुआ सुन लेता था, और क्योंकि तड़प के करते थे ना, क्योंकि मौत सामने दिखती थी, तो उसके बाद में अल्लाह ताला निकाल देते थे। निकाल देने के बाद में समुद्र से बच गए, समुद्र तूफानी समुद्र से बच गए, जमीन की तरफ आ गए। खुश्की का मतलब जमीन, जमीन की तरफ आ गए, और अब फिर अल्लाह को भूल गए। क्यों? खतरा नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, फिर तूफान नहीं आया, और फिर अपने वापस अपने हरकतों में, और उस वही गलत हरकतों में रहते थे, जिसकी वजह से असल पहली चीज तुम्हारे को अजाब आया समुद्र में। मगर लोग क्या समझते थे, समुद्र में अजाब आता, अब जमीन पे आ गए, अब नहीं डूब सकते। तो अल्लाह ताला बोले क्या अल्लाह का अजाब समुद्र में चाहता, जमीन पे नहीं आता क्या? फिर जमीन पे भी फिर आ सकता, फिर तुमको तबाही हो सकती। एक मकसद के लिए अजाब आया था, तो मकसद को क्यों गौर व फिक्र नहीं करते, और फिर क्यों ऐसे पलट जाते, अल्लाह ताला को नाशुक्रा कर देते, जैसे कि कभी तकलीफ आई नहीं थी, कभी अल्लाह ताला बचाए थे, और वापस फिर वैसी पहले हरकतों में आ जाते। चेंज नहीं आता इंसान में। जब एक तकलीफ के साथ गुजरता, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता लाइफ में, तो इंसान चेंज होकर अल्लाह के नजदीक होता, मगर उन्हें जमीन पे आके फिर वापस वैसी हो जाता। तो अल्लाह ताला बोले फिर मैं तबाही कर सकता हूँ, जमीन पे भी तबाह कर सकता हूँ तुम्हारे को, जमीन में भी अर्थक्वेक आके डूब सकते। तो फिर डरते क्यों नहीं, अपनी जिंदगी से नसीहत क्यों नहीं लेते? ये है ओवरऑल ट्रांसलेशन। अब इसको दोबारा तोड़ तोड़ के जरा पढ़ेंगे। तेरा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए दरिया में कश्तियां चलाता है। अल्लाह ताला बोले असल पहली चीज, शिप पे जाने का कॉन्सेप्ट, टेक्नोलॉजी तो मैं ही तुम्हारे को दिया। पहले तो तुम्हारे को बाई बर्थ तो किसी को नहीं मालूम था किश्ती कैसे चलाना, लकड़ी की किश्तियां बनाना, हवा को इस्तेमाल करना, जब मोटर भी नहीं था, पेट्रोल भी नहीं था, केरोसिन भी नहीं था। तो तेरा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए दरिया में कश्तियां चलाता है, ताकि तुम उसके फजल तलाश करो, ताकि तुम बिजनेस कर सको, ताकि तुम सफर कर सको और जाके कारोबार कर सको। तो अल्लाह ताला की रहमत है कि तुम्हें इस तरीके से आसान बनाया कि समुंदर के अंदर, हालांकि समुंदर डूबा तो बहुत खतरनाक रहता, उसके बावजूद भी तुम्हारे को जो है वो लकड़ी फ्लोट करके तुम्हारे को कॉन्सेप्ट ऑफ शिप पैदा करे, ताकि तुम सफर कर सके और इससे तुम अपना बिजनेस कर सको। वो तुम्हारे ऊपर बहुत मेहरबान था, बोल के ये ऑप्शन तुम्हारे को दिया। हेलो, 66 हो गई? सुन रहे क्लियर है तुम्हारी आवाज? क्लियर? हाँ, 67। तो उसके बाद में और समुद्रों में जब मुसीबत पहुंचती है, जिन्हें जब तुम पुकारते हो, ताकि सब गम तुम पुकारते थे सब गम हो जाते हैं, सिर्फ वही अल्लाह ताला बाकी रह जाता है। तो जब ऐसे टाइम पे तक, हालांकि तुम जमीन पे रहते तब शिर्क करते थे, उसकी पूजा कर रहे थे, उसकी पूजा कर दूसरे लोगों कर, मगर जब समुद्र में फंसते थे, देखते रहते भाई ये सब मेरे छोटे मोटे भगवान कुछ काम नहीं करने वाले हैं, असल बचाने वाला तो अल्लाह ही है, बोल के अल्लाह की तरफ तुम छुप जाते, और वही अल्लाह ताला ही बाकी रह जाता तुम्हारे जबानों पे, अल्लाह 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 बोलते। तो फिर जब वो तुम्हें खुशी की तरफ बचा लाता है, मतलब तुम्हारे को समुद्र से बचा लिया, तुम और तुम्हारे शिप और तुम्हारा सामान सही सलामत तुम्हें खुशकी की तरफ बचा लाता है, तो तुम मुंह फेर लेते हो, और तुम मुंह फेर लेते हो अल्लाह की रहमत की तरफ से, और इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। वकानल इंसान कफूरा, अल्लाह ताला वकानल इंसान काफिर है। तो अल्लाह ताला जो वर्ड यूज करे है नाशुक्रेपन के लिए, काफिर बोले, कफूरा बोले, तो इंसान काफिर है बोल के बोले उमूमन। ये आयत नंबर 67, 68 में। तो क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो कि वो तुम्हें खुशकी की तरफ में फिर धंसा दे, या तुम पर खतरों की आंधी भेज दे? तो तुम इतने बेखौफ हो गए, इतने रिलैक्स हो गए कि जमीन के ऊपर आ गए, खुशी की तरफ आ गए, समुद्र से बच के निकले, तो अब कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे साथ, अल्लाह का अजाब नहीं आता क्या? जमीन में धंसा नहीं सकते क्या? तुम पर खतरों की आंधी भेज दे, फिर तुम अपने लिए किस निगहबान को पाओगे? अगर वैसा हो गया तो कोई तुम्हारे को और बचाने वाला है? नहीं बचाने वाला, अल्लाह ही बचाने वाला। 69
क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह ताला फिर तुम्हें दोबारा दरिया के सफर में ले जाए और तुम पर फिर तेज और तंग हवाओं के झोंके भेज दे और तुम्हारे कुफ्र के बाइस तुम्हें डुबा दे? तो ठीक है, जमीन पे नहीं, मगर फिर पानी में जाना ही है ना, फिर कारोबार करते, तुम कश्ती पे जाते, फिर जमीन पे नहीं, फिर पानी पे फिर जाते तुम, फिर वहां पे फिर तेज हवाएं आ गए। वो भी क्यों आए? तुम्हारे कुफ्र की वजह से। कुफ्र की वजह से मतलब ना शुक्रीपन की वजह से। फिर अल्लाह ताला तकलीफ में डाल दिए, आजमाइश में डाल दिए और फिर तुम्हें डुबा दे। फिर तुम अपने लिए हम पर इसका पीछे कौन है जो तुम्हें बचाने वाला है? कि नहीं हाँ, आयत नंबर 69। तो ये है 5 आयतों का पस मंजर। तो ये आयतों को प्राइमरली एड्रेस किया गया है उन मुशरिकों की। एक्चुअली इसके पीछे कहानी क्या है बोले तो, अबू जहल जो इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, उनके एक बेटे थे इक्रिमा बोल के, जो बाद में बहुत बड़े सहाबी बने, इक्रिमा बिन अबू जहल। तो इक्रिमा जो है बाप के जैसा, उन्होंने भी इस्लाम के खिलाफ थे, दुश्मनी करते थे, सख्त दुश्मनी थी और रसूलुल्लाह से नफरत रहती थी। क्यों बोले तो, मगर रीजन ये था उनका कि मेरे भगवाना कम है, कम नहीं है, मेरे छोटे भगवाना भी है, अल्लाह भी है, अल्लाह सबसे बड़ा भगवान है और छोटे भगवाना भी है। हम अल्लाह को भी मानते, छोटे भगवानों को मानते। छोटे भगवाना कहीं को छोड़ देना, अल्लाह को कहीं को पकड़ना, छोटे भगवाना भी तो अल्लाह ही मदद करे ना, अल्लाह चाहते हैं छोटे भगवानों को, तो छोटे भगवानों को कहीं को छोड़ना मैं बोल के उन्होंने बोलते थे ये क्या कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अल्लाह को मानना, छोटे भगवाना छोड़ देना, छोटे दरगाह के लोगों को छोड़ देना, छोटे पीर मुर्शिदों को छोड़ देना, उनके पास भी जाना, अल्लाह के पास भी जाना, अल्लाह को भी चाहना, उनको भी चाहना, अल्लाह से भी डरना, इनसे भी डरना, दोनों रहे तो क्या मसला है। तो उनको कोई फाइनेंशियल रीजन नहीं था या ईगो का इश्यू नहीं था, कबीले का इश्यू नहीं था, मगर सोच अलग थी उनकी। मगर सब कुछ जान के गलत हरकत पे नहीं कर सकते, उनको समझ में आया ये ऐसा नहीं करना चाहिए बोल के, और इस्लाम के खिलाफ। तो उसके बाद में हुआ क्या, नहीं सुने, मक्का फतह होने लगा और मक्का फतह होने के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मैं सबको माफ कर देता हूँ बोल के। तो इक्रिमा को जब मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्मी लेके आ रहे, तो उन्होंने क्या करे, अब मक्के में दिन खत्म हो गए अपने, अब पूरा मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक ओवर कर ले रहे, अपने को चांस नहीं है बोल के उन्होंने क्या करे, जो है सामान पूरा पैक करके शिप में भाग रहे थे, इथियोपिया चले जाएंगे, अफ्रीका कहीं तो भी चले जाएंगे बोल के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल भेजा इक्रिमा को, तुम हालांकि इस्लाम के खिलाफ इतना जुल्म करे, उसके बावजूद भी तुम्हारे को माफी मिलती, पहले के गुनाह पूरे माफ होते, आ जाओ। नहीं सुने, नहीं सुन के भाग। तो एक शिप में चले गए, वो शिप एक समुद्र जा रही थी। हेलो, आवाज आ रही मेरी? आ रही। थोड़ा जो है बैकग्राउंड मैंने कोई अनम्यूट किए थे, राइट। तो उन्होंने जो है शिप में कहीं अफ्रीका निकल जाएंगे बोल के उन्होंने कोशिश में निकल गए। हुआ क्या, सेम समुद्र में तेज बारिश आई, इतनी तेज कि अब लोग समझ गए कि ये समुद्र में जो टाइड्स आए इससे बचना भी आसान नहीं है। छोटी शिप थी, उस जमाने की हवा के ऊपर चलती थी, तो अब तो डूब जाना है बल्कि बोल। तो सब लोग अरब वाले थे, वो लोग के अलग अलग भगवान थे, ये भगवान का नाम लेके शिप चढ़े, ये भगवान को याद कर लेके शिप चढ़े, मगर जब देखे कि मौत है और आगे कुछ ऑप्शन नहीं है, एकदम सब मिलके अल्लाह को याद कर रहे। तो इक्रिमा देखे कि जब रियल तकलीफ आई तो अल्लाह ही मदद कर रहा और अल्लाह की तरफ पुकार रहे, जब कोई छोटे भगवानों को नहीं पुकार रहे। क्योंकि क्यों नहीं पुकार रहे, बोलते नहीं ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, अब जान जा रही, वो बेकार, वो छोटे भगवान छोड़ो भाई, अल्लाह ही सब कुछ है बोल के बोल। तो ना एकदम उनको दिमाग में आया कि भाई अल्लाह ही सब कुछ है और तकलीफात में बचाने वाला अल्लाह ही है, तो हम छोटे भगवानों के पास छोटे छोटे काम करने के लिए, अपने तकलीफात दूर होने के लिए क्यों जाना? मकसद ही क्या है, क्या ताकत है उनके अंदर? इतना बड़ा समुंदर का वेव्स में बचाने वाला अल्लाह ही है, तो फिर अल्लाह ही सब कुछ है, तो एक ही अल्लाह है, बाकी का तो कुछ काम नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने दुआ करे, अल्लाह तू ही सच्चा रब है, मैं तेरा ईमान लाता हूँ, और अगर सही सलामत बच के निकल के पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे जाके बैत कर तो बोल के। और वैसे ही हुआ, समुद्र का पानी रुक गया और जो है उन्होंने जमीन पे गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो सहाबियां रोक दिए, तुम कत्ल करने आए? बोलते नहीं, मैं ईमान लाने आया। बोले ईमान लेके आए,
اور اللہ اور جو ہے بہت بہترین مسلمان بنے. تو یہ پس منظر ہے اس آیت کا جب یہ سچویشن ریویل ہوا, اس سے کنیکٹڈ ایک انسیڈنٹ اس سے ہے. مگر اللہ تعالیٰ ایک پرائمری ٹارگیٹ یہ ہے اس آیت کا کہ دوسرے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے لوگ جو خدا کے جیسے تمہارے پرابلم سالو کرتے بول کے دعویٰ کر رہے, جیسے کہ پیر مرشد ہو یا درگاہ کے ولی اللہ ہے, ان کے پاس بھی پاور ہے, ان کے پاس بھی کاما ہوتے, ان کے پاس بھی جنات ہے, انہوں بھی جادو سے تمہارے پرابلم سالو کر سکتے. یہ سب کے پاس نہیں جانا, ہر چیز کے لیے جانی ماز بچھانا اور اللہ کی طرف پلٹنا بول کے یہ آیت کا اسپیسیفک میننگ تھا جب مشرکوں کے لیے ٹارگیٹ کر رہے تھے. مگر اس آیت کی اور گہرائی میں اترے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت کو ایک جنرل میننگ نکل رہا کہ تم مشرک رہو نہ رہو, اپنے کفر کے حرکتوں کی وجہ سے, اپنے جہالت کی وجہ سے تمہار کو اللہ کا عذاب آتا, اور اللہ کا عذاب آتے تم بہترین مسلمان بن جاتے, گڑ گڑاتے اللہ کے سامنے روتے کہ بس یہ تکلیف ہٹا دو, یہ پرابلم ہٹا دو, اور اللہ تعالیٰ تمہارے تکلیف ہٹا دیتے. مگر زمین پہ واپس جانا مطلب وہ تکلیف سے جب نکل جانا, وہ پرابلم جب چلے جاتا, تم ایسے بن جاتے جیسے تمہارے اندر کوئی چینج ہی نہیں ہے, ایسا جیسا کہ تم تکلیف سے گزرے ہی نہیں, تمہارے کو معلوم ہی نہیں کس کی بات کر رہے بھائی, کب کی بات کر رہے, وہ ٹائم کب نہیں معلوم آ رہا, ہو گیا وہ پرانی باتیں چھوڑو, تم اب لائف آگے دیکھو. تو اللہ تعالیٰ بولتے مقصد کیا تھا تمہارے کو یہ تکلیف بھیجنے کا, تاکہ تم اپنے آپ کو جھکاتے اور ہمیشہ کا ایک چینج لے کے آتے, نہ کہ ٹیمپرری اللہ کے سامنے نمازوں میں روزوں میں گڑ گڑانا. یہ مقصد نہیں تھا, یہ ٹیمپرری چینج ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے پرماننٹ چینج چاہ رہے تھے. اور پرماننٹ چینج کیا ہے؟ اللہ سے محبت اور اللہ کے نزدیک آنا. کیسے؟ یہ اللہ میرے کو احسان کر کے یہ تکلیف سے میرے کو نکالا بول کے آپ اللہ کے سامنے سرنڈر ہو گئے, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے طرف پلٹ گئے, اور دنیا سے کہ وہ جو حرام کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے عذاب آیا, وہ حرام کام کو بھی بند کر دیے, اور اللہ کے بہترین غلام میں سے بن گئے, اور اسلام کے دائی بن گئے. اور یہ چینج اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے. مگر تم جو ہے وہ ایک تکلیف کو ہٹا دے کے واپس اپنی پرانی زندگی میں چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کیوں کر رہے تم ایسا؟ تم کیا یہ سوچ رہے کہ یہ تکلیف دوبارہ نہیں آتی؟ اچھا یہ سٹائل سے نہیں آتی. فار ایگزامپل کوئی بچے کے لیے تڑپ رہا اور بچہ نہیں ہو رہا, ٹپیکلی 10 سال ہو گئے شادی کے, کروڑوں لاکھوں پیسہ لگا دیے, اور جو ہے تڑپ رہے ترس رہے, اولاد نہیں دیا اللہ تعالیٰ, اور ایک دم جو ہے اتنا روئے اتنا گڑ گڑا اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے چلو میں تم کو اولاد دیتا ہوں. مگر اولاد آتے ہی تم اللہ کو بھول گئے, کیونکہ تم کو لگتا اب تم کو اللہ سے کام نہیں ہے, کیونکہ اولاد تو مل گئی. اب اولاد میں اتنے انوالو ہو گئے کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے, اور اللہ تعالیٰ جیسا چاہ رہے ویسا اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں آ رہے. ہاں جس انٹینسٹی سے دعا کرے تھے وہ 4 سال 5 سال جب بھی اچھے مسلمان تھے, کیونکہ تمہارا کام ہونا تھا, مقصد تھا تمہارے کو اللہ سے کچھ حاصل کرنا تھا, تو وہ مقصد کے تحت اللہ کی عبادت کرے, جو کہ شروعاتی سٹیج میں ٹھیک ہے, جو کہ شروع کے مسلمانوں کے لیے الاؤڈ ہے, ویسا کر سکتے. مگر وہی لیول پہ نہیں رہ سکتے نا, کہ خود غرضی والا عبادت نہیں کرنا نا, بے لوز عبادت کرنا, صرف اللہ کے خاطر, بغیر کسی ایکسپیکٹیشن سے, بغیر کچھ امید کرے بغیر, صرف اللہ عبادت کے قابل ہے, اور اللہ اتنے میرے کو احسان کرا بول کے بغیر کچھ اور امید کرے تم اللہ کی عبادت کرنا, یہ صحیح سٹیج ہے. ہاں مگر یہ سٹیج پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے, ٹائم لگتا. تو کیا کرے, تم تکلیف میں تھے, تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ کی بات کرے, مقصد تھا, تم تھوڑے سیلفش تھے, مگر وہ شروعاتی سٹیج میں تھا. پھر ویسا کرتے کرتے اللہ کی عبادت کرتے رہے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے کو نعمت دیا, وہ تکلیف سے نکال دیا, تو اب تم اپ گریڈ ہو جانا تھا. اب تم اللہ کے اور نزدیک ہو کے بغیر مقصد کے عبادت کرنا چاہیے تھا, مگر ویسا نہیں ہو رہا. وہ جو اللہ تعالیٰ نے رحمت دیے بیٹا یا اولاد, اس کے پیچھے بزی رہ کے پھر اللہ کو بھول گئے. تو اللہ بولے اصل پہلی چیز میں تکلیف تمہارے کو دیا, کہیں کو تم کو بے اولاد کیوں بنایا, میں تم کو اولاد روک کیوں دیا, تمہارے کو عذاب کیوں ڈالا, کیونکہ تم بھٹک رہے تھے, تم غلط راستے پہ جا رہے تھے. کئی نعمتیں پہلے بھی دیا تھا, مگر وہ نعمتوں کو تم شکر ادا کر کے انجوائے کر کے اللہ کی طرف آنا تھا, اللہ کی دین کی طرف آنا تھا, اللہ کے حکومات کو فالو کرتے ہوئے اللہ سے محبت کرنا تھا, وہ نہیں کرے.
تو मैं तुम्हारे को अजाब दिया, तकलीफ में डाला, और अब फिर तकलीफ से फिर निकल गए, और तकलीफ से निकलने के बाद फिर वही पुरानी जिंदगी में जा रहे। तो अल्लाह ताला बोल रहे सोचते क्यों नहीं, तुम गौर और फिक्र क्यों नहीं करते कि असल ये चीजें तुम्हारे साथ हो रहे क्यों, मैं चाह रहा हूं क्या, तुम समझ क्यों नहीं रहे। बस एक स्टेज ऑफ लाइफ है। हाँ, शादी के बाद में प्रॉब्लम्स होते, हर एक को होते, बच्चे नहीं होते आम है, इनफर्टिलिटी सेंटर है, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जाएंगे। क्यों ये सामने वाला इश्यू देख रहे, मगर उसके पीछे दूसरा एंगल क्यों नहीं देख रहे, रूहानियत का प्रॉब्लम क्यों नहीं सोच रहे, अल्लाह के तुम्हारे ताल्लुकात के बारे में क्यों नहीं सोच रहे, बस उसको सामने से एड्रेस क्यों कर रहे। उससे होता क्या कि भाई डॉक्टर अच्छा नहीं मिल रहा, दवाई अच्छी नहीं मिल रही, इंजेक्शन अच्छे नहीं है, हार्मोन्स अच्छे ग्रोथ नहीं हो रहे, हार्मोन्स को ठीक करो, वॉकिंग करो, ये चीजा करो, ये डाइट लो, ये सोच रहे। मगर अल्लाह ताला तुम्हारे को अजाब दे रहा, अल्लाह तुमसे नाराज है, ये चीज तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आ रही। और उसके वजह से हो क्या रहा कि तो वो तकलीफ हो जाने के बाद में तुम समझ रहे फिर मेरे को अल्लाह की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि औलाद आ गई, अब दोबारा औलाद तो नहीं है, औलाद का प्रॉब्लम वंस फॉर ऑल सॉल्व हो गया। तो अल्लाह बोल रहे मैं फिर औलाद बे औलाद बना सकता हूँ तुम्हारे को, ये औलाद को ले सकता हूँ, औलाद की मौत हो सकती, अल्लाह ताला अपने औलाद को वापस बुला ले सकता, रहमत है। और फिर तुम बगैर औलाद के हो सकते, फिर तड़पते रह सकते। तो क्यों तुम सोच रहे कि एक बार निकल गए एक तकलीफ से, वो तकलीफ दोबारा क्यों नहीं फंस सकते, या उसके जैसी कोई सिमिलर तकलीफ और एक तकलीफ आ गई तो अच्छा, औलाद आ गई मगर औलाद खराब औलाद निकली तो, बीमार औलाद निकली तो, प्रॉब्लमेटिक औलाद निकली तो, उसको लेके घूमते रहते डॉक्टर। हेलो, हाँ बोलो। तो वो औलाद तो आ गई, अब मेरा काम खत्म हो गया समझ रहे, मगर औलाद बीमार निकली तो उसको कोई बॉडी ऑर्गन का ग्रोथ बराबर नहीं हुआ, अनएक्सपेक्टेड कुछ शुगर की बीमारी आ गई बचपने में, उसको लेके डॉक्टरों के फिर रहे। तो अल्लाह ताला वही बोल रहे तुम समुद्र से निकल गए, तूफान में बच गए, जमीन पे आ गए, अब समुद्र के तूफान तो नहीं आता जमीन पे, तो नया प्रॉब्लम आ सकता ना जमीन पे, जैसे कि अर्थक्वेक में तुम जमीन के अंदर धंस गए, या तुम्हारे सर के ऊपर पत्थरों की बारिश हुई और तुम कुचल के मर गए। तो अल्लाह ताला वैसे ही बोल रहे तुम औलाद हो गए, अब जरूरत नहीं समझते, फिर औलाद बीमार हो गई तो, औलाद बेकार निकल गई तो, औलाद तुम्हारी बात नहीं सुन रही तो, औलाद जाहिल जंगली हो गई, औलाद गलत दोस्तों में चले गई, तो फिर क्या करते, फिर मेरे पास आना पड़ता। क्या मेरी जरूरत ही नहीं है तुम्हारे को? जिंदगी में हर चीज का चलना फिरना ताकत सब अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला चाहा तो हम चलते फिरते जीते कारोबार करते बच्चे रखते बच्चों को आगे लेके जाते, सब अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म के बगैर हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। कभी भी अल्लाह हमको पकड़ ले सकता, समुंदर में रहे तो भी पकड़ ले सकता, जमीन पे रहे तो भी पकड़ सकता, कारोबार सेट रहे तो भी पकड़ सकता कोई और तरीके से, सेहत अच्छी रहे तो भी कोई और तरीके से पकड़ सकता। अल्लाह बोल रहे मैं कई तरीके से तुमको पकड़ ले सकता हूँ, तुम्हारा नल्ला दबा देता हूँ, तुम्हारी गर्दन दबा देता हूँ मैं, मेरे पास तो ताकत है। अल्लाह ताला इस आयत में बोल रहे ये एक जगह पे तुम निकल गए तो नको समझो, तुम समुंदर से बाहर निकल गए, जमीन पे रेती पे चल रहे तो तुम समुंदर के तूफान को भूल गए, नको समझो, तूफान अलग शेप में फिर आ सकता। और यही देखो कई लोगों की जिंदगी में एक के बाद में एक प्रॉब्लम्स आते, एक परेशानी से निकलते, थोड़े 1-2 साल अच्छे गुजरते, फिर और एक प्रॉब्लम में आते, फिर मगर वो लोग गौर फिक्र नहीं करते, अपने गिरबान में नहीं झांकते, अपने ईमान को नहीं चेक करते, अपने अल्लाह के ताल्लुकात को नहीं चेक करते, ये नहीं पूछते क्या अल्लाह मेरे से नाराज है। ये $1,000,000 क्वेश्चन है, क्या अल्लाह मेरे से नाराज है, क्या मैं कुछ ऐसे हरकत कर रहा हूँ जिससे अल्लाह मेरे को पकड़ रहा, मेरे को अजाब दे रहा और मेरे को फोर्स कर रहा, सोचने पे मजबूर कर रहा कि क्या कर रहे तुम अपने जिंदगी से। ये जिंदगी में इसलिए नहीं दिया था, ये एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं दिया था तुमको, ये एंजॉयमेंट इसलिए दिया, ये सक्सेस इसलिए दिया, सिल्वर स्पून के साथ तुम्हारे को इसलिए पैदा करा, इतने पैसों के साथ प्रॉपर्टी के साथ इतने पैदा करा, यानी तो तुम इतने प्रॉपर्टियां कमाए इस वजह से, या नहीं तो तुम्हारे को इतनी ऐशो आराम आई इस वजह से कि नहीं कि तुम बहुत बेहतरीन इंसान थे, इस वजह से कि ये नेमतों को एंजॉय करके खुश रह के अल्लाह दिया बोल के अल्लाह की तरफ पलटना। मेरे को अल्लाह दिया, ये सब मालूम कौन दिया? अल्लाह दिया। शोएब ये कौन दिया? अल्लाह दिया, मैं इसके काबिल नहीं था, अल्लाह दिया। तो शोएब बोलता अच्छा इतना सब अल्लाह दिया तो तू क्या करा अल्लाह के लिए? कुछ नहीं करा है, रो सिर्फ खा रो ऐशो आराम
खा रहे हो, पैसा खा रहे हो, प्रॉपर्टी खा रहे हो, बच्चों को एंजॉय करो, बीवी एंजॉय करो, जवानी एंजॉय करो, वक्त एंजॉय करो, सब एंजॉय करो, फिर टैक्स नहीं देते उसका, फिर अल्लाह को शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह की तरफ वापस पलटते नहीं, अल्लाह को ढूंढते नहीं, अल्लाह को पुकारते नहीं, अल्लाह बोल के तरफ से आवाज नहीं निकलती, क्यों नहीं निकल रही? और अगर आप गहराई से एक बात गौर करो कि आज हम लोग बैठ के कुरान की क्लास में कुरान स्टडी कर रहे हैं, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जो इस जमीन पे उतारे वो कुरान है, उसको हम लोग पढ़ रहे और गहराई से अल्लाह को अंडरस्टैंड कर रहे। कितने लोग हैं, करोड़ों, जो अपनी जिंदगी में हिंदू है, क्रिश्चियन है, जबान पे अल्लाह बोल के नहीं बोले। आज हम अल्लाह के बारे में इतनी गहराई से अंडरस्टैंड करें। कई ऐसे लोग हैं जिंदगी में, आप इंडिया के हिंदुओं को ले लो, यूरोप के क्रिश्चियनों को ले लो, उनको इस्लाम क्या है नहीं मालूम, मुसलमान क्या है ABCD भी नहीं मालूम, अल्लाह बोल के जबान पे कभी नहीं लिए। और आज हम मुसलमान करते हैं, अल्लाह बोल के तो भी जबान में निकलता, कलमा पढ़े जब या नहीं तो नमाज पढ़े जब। वो मिनिमम नेमत है, जो ये नेमत करोड़ों लोगों को अल्लाह ताला नहीं दी। और चंद लोग हैं धक्के खा के, मार खा के, तकलीफ से मुसलमान बने कि उनकी फैमिली उनको नफरत करी, उनकी फैमिली जो बचपन से उनके साथ भाई बहन थे, माँ बाप थे, वो लोग भी उनको पलट के नहीं देखे, तो भी वो लोग वो तकलीफ को बर्दाश्त करके जो है अल्लाह को माने वो लोग। तो उसी तरीके से आप सोचो कि आप और हम कितने खुशनसीब है कि आज हमारे जबान पे अल्लाह बोल के नाम लेने का मौका मिला। और ये ऑप्शन भी लोग उसको केयर भी नहीं कर रहे कि मतलब उसको एक्सप्लॉइट भी नहीं कर रहे कि भाई हमारे को अल्लाह का नाम लेने का मौका मिला, चलो अल्लाह का नाम लेंगे। कई लोगों को तो वो भी नहीं मालूम, नाम भी नहीं मालूम, लेने की शर्म भी नहीं है, यानी तो जो इबरत भी नहीं है। और हमको वो मौका है, दिल खोल के बोलो, बार बार बोलो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह अल्लाह बोलो, अलग अलग नाम से पुकारो, ये आपको मौका मिला। मगर लोग किसकी बात कर रहे हैं आप? क्या जरूरत है? हमारे को तो सब है, हम क्यों, क्या जरूरत है अल्लाह को मांगने की, क्या करने की? सब तो चल रहा ना हमारी जिंदगी, सब अल्लाह ताला दे दिया, मेरी मेहनत से मैं सब कमा लिया, सब आ गए मेरे पास, चीजा हो गया, पैसा बन गया, बच्चे हो गए, शादियां हो गए, सब है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर क्या जरूरत है? बल्कि इंसान सोचता। तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला के पास दूसरा, अल्लाह ताला के पास यही ऑप्शन है कि उनको फिर पकड़ के रस्सी से खींचता, अलग अलग तरीके से खींचता। मगर इंसान वो रस्सी को देख रहा जिससे खींचे जा रहा, मगर रस्सी कौन डाले और रस्सी को कंट्रोल कौन कर रहा, वो इंसान नहीं देख रहा। मतलब रस्सी क्या है? बे औलाद होना, या गरीबी रहना, या टेंशन रहना, या बीमारी रहना खुद को, ये रस्सी है। ये रस्सी को देख रहे, अरे मेरे को ये प्रॉब्लम चल रहा, तुम्हारा क्या चल रहा? अरे मेरे को जॉब का मसला, तुम्हारा क्या चल रहा? औलाद का मसला, तुम्हारे को क्या चल रहा? बिजनेस नहीं चल रहा, ये मेरा मसला, तुम्हारे को क्या? मेरी सेहत अच्छी नहीं है। सब अपने अपने मसलों को देख रहे, सब अपने अपने रस्सियों को देख रहे, मगर रस्सी किसके हाथ में वो नहीं देख, रस्सी कौन खींच रहा? रस्सी को देख रहे, रस्सी है, ये रस्सी है, रस्सी है बोल रहे, मगर रस्सी डाला कौन? रस्सी आई क्यों? और रस्सी खींच रहा कौन? और रस्सी का मालिक कौन है? वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो नहीं होते और सिर्फ यही देखते, बस इधर जाओ उधर जाओ, ये मेहनत करूं, ये टेक्निक करूं, ये कारोबार खोलूं, या ये डॉक्टर के पास चले जाओ, या ये कर लो, क्या करो, बस मेरे को प्रॉब्लम से निकलना है। रस्सी से कैसा आजाद होना? मगर रस्सी से आजाद हो भी गए, तड़प तड़प के मांग के भी, फिर और एक बार रस्सी पड़ती इस गले में, अलग तरीके से रस्सी बनती। तो ये पैटर्न को समझाने के लिए ये 5-6 आयतें अल्लाह ताला बोल रहे, मैं फिर रस्सी डालता हूँ, फिर तुम्हारे को टाइट करता हूँ, फिर 1-2 साल में तकलीफ नहीं आती, जिससे तुम परेशान हो जाते, हिल जाते, फिर रोते, सिंसियरली रोते अल्लाह के सामने, ऐसा रोते जैसा कभी नहीं रोए। फिर उसके बाद जब तकलीफ चले जाती, फिर ऐसा दूर भाग जाते अल्लाह से जैसा कि अल्लाह कौन है। तो ये हम लोगों को इस आयत से अल्लाह ताला हम लोगों को पुकार रहे कि, क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्टली बात नहीं करते आपसे, क्योंकि पैगंबरों से बात करते, जिब्रील अलैहिस्सलाम वही के जरिए बात करते। तो आपको कौन समझाना कि अल्लाह ताला ऐसा बोलना चाह रहे, अल्लाह ताला आपके साथ नाराज है इसलिए अल्लाह ताला आपको तकलीफ भेज रहे। तो कुरान के जरिए, हम दाई के जरिए, इस्लामिक टीचर के जरिए आपको अल्लाह ताला बोल रहे, सोचो आपके लाइफ में क्यों आया, झांक के देखो, क्या करे आप? क्या कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिए, जिना कर दिए, या शराब पिए जिसके वजह से अल्लाह ताला तकलीफ दिए, या फिर तुम सबसे बड़ा गुनाह ये करे कि तुम कुफ्र करे, नाशुक्रीपन करे। और आयत के अंदर आप वापस गए तो कि हमने ये भेजा क्यों था, क्योंकि इंसान कुफ्र करता है,
उमूमन इंसान कुफ्र करता है। इसमें आदिल कुफ्र को नाशुक्रे पने से जोड़ा गया। एग्जैक्टली ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला के नजर में जब नेमता देने के बाद में नाशुक्रेपन करे तो अल्लाह बोल रहे इससे बड़ा कुफ्र क्या है बोले। तो लेकिन ठीक है, नाशुक्रेपन को अल्लाह ताला एक पॉइंट है, सॉरी आदिल, नाशुक्र अपना चलो मतलब मेरी लाइफ अच्छी चल रही, मेरे को कुछ बड़ा बिजनेस मिला, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल लिया, क्या मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से क्या मैं शुक्रिया अदा करा अल्लाह का? नहीं करे। क्यों? क्योंकि ये शुक्र जो है प्रोपोर्शन टू नेमत रहना। अगर आप रास्ते पे जा रहे थे और आपको एक पत्थर दिखा, पैर उस पे जरा चुभा और एकदम आप हट गए, पैर चुभ रहा था, बच गए, अल्हम्दुलिल्लाह बोले चलता। मगर 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट मिला फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल के निकल गए पतली गली से, ये कैसा शुक्र है? 5 साल से तड़प रहे, औलाद नहीं हुई, औलाद दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल के औलाद के साथ एंजॉय कर लेते, घूम लेते। 1 साल से बेरोजगार है और नौकरी लगी, अल्हम्दुलिल्लाह बोल के 1000 रुपए किसी के गरीब के जेब में डाल दिए तो हो गया, शुक्र हो गया। शुक्र, बड़ा शुक्र जब करना जब बड़ी नेमत निकली। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बुशराबाद में थे, मैं हैदराबाद में था, बेरोजगार था, परेशान था, कुछ नहीं था, अल्लाह ताला बेहतरीन नौकरी दी और नौकरी 4-5 साल से अच्छी चल रही, बस अल्हम्दुलिल्लाह बोल के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लिए तो हो जाता। तो ये नाशुक्रापन के, और एक्चुअली जब हम लोग शुरू में सूरह बकरा के शुरू में मैं शुक्र जो है 3 तरीके से बताना चाहिए बोल के बोला था, जबान से, दिल से। जबान से जो है मिनिमम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कई मिनिमम नेमत के लिए मिनिमम अल्हम्दुलिल्लाह है। मतलब तुम जैसे पत्थर का कुछ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज ओके, एक्सेप्टेबल। मगर बड़े परेशानियों से निकाले, उम्मीद भी नहीं थी, उतना आगे लेके चले गए। या नहीं तो वो छोड़ो, तुमको अल्लाह ताला बेहतरीन फैमिली में पैदा करे, में पैदा करे, या बहुत एजुकेशनल फैमिली में पैदा करे, बाई डिफॉल्ट तुम डॉक्टर बनते ही बनते, बाई डिफॉल्ट तुम्हारे को पूरी ट्यूशन फीस और बड़े बड़े ट्यूशन और बड़े बड़े किताबा, माहौल, घर का माहौल, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, पूरे नौकरा है, रात दिन तुमको पढ़ने का मौका मिला, ये भी नेमत है। दूसरे लोगों को नहीं मिलता। दूसरे लोग रात सुबह में उठ के 4 बजे न्यूज़पेपर घरों को डाल के फिर 8 बजे आके जो है पढ़ते थे और रात में शाम में फिर नौकरी करते थे। तो वैसा नहीं ना, आपको नौकर है, आपको खाली पढ़ना है, आपको स्कूल जाना है, आराम करना है, फिर सो के उठ के शाम के टाइम में फिर थोड़ा पढ़ना है। लोगों को नौकरियां भी करना है, दूध भी बेचना है और फिर खुद से पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, चिराग में पढ़ना है। आपको तो सब नेमतें दी, आपको नौकरी फोन पे लग गई, आपके अब्बा फोन करके बोले वो मैं मेरे बेटे को भेज रहा हूँ, नौकरी दे दो, तुम दोस्त है ना मेरे, अजी जी आप भेज दीजिए, मैं उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दूं, तो अब नौकरी आसानी से मिल गई, सिल्वर स्पून के साथ पैदा हो। तो ये नेमत नहीं है, ये तुम कौन दिए, तुम पूछे भी नहीं, तुम तो मांगे भी नहीं, तुम्हारे को दिए। अल्लाह बोलते फिर शुक्र का है। शुक्र बोले तो एक्चुअली अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तुम अल्लाह 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 बोल के नाम पढ़ लेते बैठो, क्योंकि अल्लाह बोल रहे वो अल्लाह अल्लाह बोलने के लिए करोड़ों फरिश्ते मेरे पास है और तुम अल्लाह अल्लाह बोल के मेरी तारीफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, तो तुम तारीफ नहीं भी करे तो मैं तारीफ के काबिल हूँ, तुम्हारे तारीफ का मैं मोहताज नहीं हूँ और तुम्हारी तारीफ की एक्चुअली मेरे को जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों शुक्र अदा करो बोले अल्लाह ताला? क्योंकि अल्लाह ताला बोल रहे इसके बहाने तुम मेरे से प्यार करते, मेरे को चाहते, मेरे को अंडरस्टैंड करते और उसके बाद में मेरे दीन की जरूरियात को पूरा करते। क्या है मेरे दीन का काम? दीन का काम को आगे बढ़ाते, जैसा रसूलुल्लाह साहबिया दीन को आगे बढ़ाए, दीन को फैलाए, दीन पे अमल करे, खैरात करे, तस्बीह पढ़े, जिहाद करे, सब करे। तो ये सब करो बोल के, ये सब कब करते तुम? मेरे से मोहब्बत करे तो ना, इसके लिए मेरे से मोहब्बत करो बोल रहे। अल्लाह ताला मोहब्बत इसलिए नहीं करो बोल रहे क्योंकि अल्लाह ताला चाहते कि सब उनके दीवाने होना, वैसा नहीं है। अल्लाह ताला के चाहने वाले, इबादत करने वाले तो करोड़ों है, फरिश्ते बने हुए जिनका काम रात दिन इबादत करना, और अल्लाह ताला खुद इबादत के काबिल। अल्लाह ताला बोल रहे पूरी दुनिया भी मेरी इबादत नहीं करे तो मेरी इज्जत में 1% कमी नहीं होती। तो फिर क्यों करना हम? क्योंकि तुम्हारे अंदर मोहब्बत जागी अल्लाह की, तो तुम्हारे जेब में से, वॉलेट में से पैसे निकल के एक 10,000 रुपए किसी गरीब की शादी को देते अल्लाह की मोहब्बत में, वरना अल्लाह की मोहब्बत नहीं रही तो नहीं देते पैसे। तो ये सब चीजा करना, ईमान आना, बड़े बड़े चीजा सैक्रिफाइस करना, बोल तो अल्लाह की मोहब्बत दिल में आना, तो अल्लाह की मोहब्बत आना बोल के तो अल्लाह ताला इतने नेमतें दिए और तुम नेमतें खाए और अल्लाह से मोहब्बत नहीं करे।
اور اگر محبت کرے تو نام کی محبت. ہاں آپ کس کو چاہتے ہیں؟ میں اللہ کو چاہتا ہوں. میرے بچے کا نام کیا رکھیں گے؟ عبداللہ. دیکھو اللہ کی محبت ہے، بلکہ بیٹے کا نام عبداللہ رکھا میں. یہ جھوٹی محبت اللہ کو نہیں. اللہ بول رہا ہے اگر تم محبت کرتے تو میرے لیے قربانی دو. تمہارا عزیز پیسہ بانٹو، تمہارا عزیز ٹائم دو. تھک کے آنے کے باوجود بھی کوئی اگر بول رہا کہ بھائی میرے کو مدد کرو، میں گر گیا، میں پڑ گیا، میں ہاسپٹل ہوں، تو میرے لیے بھاگ کے آؤ. اللہ بول رہا وہ کرو. محبت کرتا ہوں، میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ سب دعوے کرتے. مگر جہاں قربانی کا وقت آتا، کمر میں درد ہو رہا ہے اور میرے سے نہیں ہوتا، ارے میرے کو ابھی گولڈ کی شاپنگ کرنا تھا بیوی کو، ارے میرے کو ابھی وہ آ گیا تھا، ارے میرے کو موڈ نہیں ہے یارو. تو اللہ تعالیٰ یہ محبت پیدا کرنے کے لیے تمہارے کو نعمتیں دیا. تمہارے کو اچھے گھر میں پیدا کرا، تمہارے راستے آسان کرا، تم سعودی میں اترتے جاب مل گئی، کئی لوگوں کو کئی نعمتیں ملی. اپنے اپنے لائف کو دیکھ لو، مطلب میں جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی اب کسی کی پرسنل تو میں نہیں جانتا، مگر اپنے اپنے نعمتوں کو آپ یاد کرو. نہیں تو کئی لوگ تو جوانی میں بیمار ہو جاتے، یعنی تو طلاقیں ہو جاتی شادی ہونے کے بعد میں، یا طلاق نہیں بھی ہوئی تو بیوی شوہر کے ساتھ روز ایسی لڑائی ہوتی جیسا کہ انہیں خودکشی کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہے، ویسا لائف میں ٹارچر کرتے تھے. الحمدللہ وہ بھی نہیں ہے، یہ پرابلم بھی نہیں ہے، یہ پرابلم بھی نہیں، یہاں بھی اللہ کی رحمت، وہاں بھی اللہ کی رحمت، یہاں بھی اللہ کی رحمت. اللہ تعالیٰ اتنے رحمتیں دے رہا کئی کو، تاکہ بندہ جو ہے خوشی سے پلٹے. مگر کیا کرتا انسان؟ وہ سب پیریڈ کو بھول جاتا. جب تکلیف آ جاتی نا، جب بھی یاد کرتا. تو اللہ تعالیٰ بولے ارے اب یہ بندے کو اتنے نعمتیں دے کے دیکھا، انہیں پلٹ رہا ہے. ایک کام کریں گے، عذاب دے کے بھیجیں گے. عذاب آتے کیا نماز بچھاتا. اللہ اللہ اللہ. یہاں حج کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، طواف کرتا ہوں، اب خیرات کرتا ہوں، اب خیرات بھی کرتا ہوں، اب قرآن کی تفسیر بھی پڑھتا ہوں، نماز میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تکلیف کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اچھے ٹائم سے نہیں سدھرے، نعمتوں سے نہیں سدھرے، تو اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے تو بھی سدھارنے کی کوشش کرتے. تو تکلیفوں کا اصل مقصد تکلیف جھیلنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے کو تکلیف دے کے انجوائے نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو مزہ نہیں آتا تم کو تکلیف میں تڑپتے رہے. تو اللہ تعالیٰ تکلیف اس لیے دیے کہ تم اپنی زندگی کا وجود سمجھو، تم کیوں اس دنیا میں آئے اس کو سمجھو، اس پہ غور و فکر کرو. محبت سے تم نہیں سنے. جیسا بچوں کو اپن پالتے پیار سے، نہ لاڑوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے، نہیں سنے چھڑی نکالتے. چھڑی سے تو بھی، کیونکہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ بچہ اچھا ہو جانا، برابر کھانا کھانا، صحت اچھی بننا، اچھا پڑھنا، اچھا سونا. تمہاری نظر تو اچھی ہے، تمہاری محبت اچھی ہے، مگر تم لکڑی یوز کرتے نا بچوں کے خاطر، ان کے اچھے کے لیے. تمہارے کو مزہ نہیں آتا، تم سائیکوپیتھ نہیں ہے. لکڑی استعمال کر کے تمہارے کو مزہ آنے کا نہیں ہے، تم ان کے اچھے کے خاطر لکڑی استعمال کرتے. اور کئی بار بچوں کو مارتے ہوئے اندر سے تکلیف ہوتی، نہیں مارنا چاہتے، مارتے تاکہ ان کے اچھے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے انسان کو پریشان کرنا، غریب بنانا، یا بے اولاد بنانا، یا بے روزگار بنانا، یا ہر تکلیف میں ڈالنا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نعمتیں دینا چاہتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت بنایا. مگر جنت کے لیے نہیں کام کر رہا، تو جنت کی فکر نہیں ہے تیرے اندر. اس کے لیے تیرے کو میں اب یہ چھڑی مارنا پڑتا، یہ چھڑی کے بہانے تو بھی چینج ہوتا ہوں گا. مگر افسوس وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ تکلیف دیتے اور تکلیف دینے کے باوجود بھی غور و فکر نہیں. کتنے انفارچونیٹ ہے وہ لوگ، کتنے اندھے بہرے گنگے. انسان نہیں جانور ہے وہ، کیونکہ سوچ نہیں. کیوں 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 آ رہا نہیں سوچ سکتے، اور اتنی ہوشیاری کرتے، اللہ کے ساتھ ہوشیاری کرنے کی کوشش کرتے. اچھا اللہ ناراض ہے نا، ایک کام کریں گے، ایکٹنگ ماریں گے اللہ کے سامنے، ہم اچھے بن گئے، اچھے بن گئے، اچھے بن گئے، 1 سال اچھے بنتے اچھے بنتے. ہاں ہاں سب سنتے سب سنتے. کئی کو اندر کیا ہے مقصد؟ کیسا تو بھی اللہ کو خوش کر لیں گے، پھر اپنا کام نکال لیں گے، پھر بھاگ جائیں گے، پھر واپس کچھ نہیں ہوتا. پھر کہاں بھاگتے؟ اللہ کی دنیا سے کہاں بھاگتے؟ اللہ تعالیٰ بولے سمندر سے نکل کے زمین پہ گئے، زمین پہ بھاگ گئے، زمین پہ اللہ کا کنٹرول نہیں ہے. ایسا تو بھی کر کے اللہ کو راضی کر کے بچہ ہونا. بچہ آ گیا تو بس ختم، بچہ آ گیا کام ختم. باقی کا دولت پیسہ عزت تو آلریڈی ہے اپنے پاس، بس ایک بچے کی کمی تھی. کیسا بھی اللہ کو جو ہے یوز کر لیں گے اپن نوز باللہ، اور بچہ حاصل کر لیں گے، پھر اپنا کام ختم، پھر واپس اپنی عیاشی شروع کر لیں گے. کس کو بیوقوف بنا رہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندرونی خیالات کو جانتا. یہ جو تم پلاننگ کر رہے ہیں نا کہ تم اللہ کو جو ہے کیسا تو بھی اب کی بار استعمال کر لیں گے اور حاصل کر لیں گے، رو رو کے گڑ گڑائیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارا پاسٹ بھی جانتا، تمہارا فیوچر کو بھی جانتا. اللہ تعالیٰ تم کس مٹی سے بنے ہوئے جانتا. تو اللہ کے سامنے مت کرو،
ऑनेस्टली अल्लाह के सामने चले जाओ, सरेंडर कर दो कि मैं गलती करा, मैं तेरे नेमतों का शुक्र अदा नहीं करा जिस तरीके से करना चाहिए था, इसके लिए अजाब आया, अब मैं अपनी गलती मान लिया, मैं अपनी जिंदगी का मकसद समझ गया, मेरे को अभी दुनिया से ज्यादा, दुनिया की नेमतों से ज्यादा दुनिया की नेमत देने वाला अजीज है, मेरे को तेरे गिफ्टों से, अल्लाह के तोहफों से ज्यादा अल्लाह पसंद है, अल्लाह के नेमतों से ज्यादा अल्लाह पसंद है, इसलिए नेमतुल्लाह खान जैसे लोगों से दूर रहना जरूरी है। तो नेमत को मोहब्बत करना जरूरी नहीं है, नेमत तो हर कोई एंजॉय। आदिल, एक क्वेश्चन ये है कि एक इंसानी फितरत भी रहती, मतलब बगैर ऐसा प्लान कोई नहीं करके, अरे ऐसा 1 साल अल्लाह को मना लेंगे, फिर जो है सो बच्चा या फिर बिजनेस अच्छा होने के बाद हिटलर अपनी जिंदगी में वापस चल जाएंगे, कोई ऐसा प्लान नहीं करता, लेकिन इंसानी कुछ फितरत रहती, नेचर रहता, किसी को भूल जाता इंसान दुनिया के मसरूफियात में, प्लान नहीं करता ऐसा। हालांकि प्लान ये करता कि भाई अल्लाह से करीब जाऊंगा मैं, ओके, मुश्किलों में हूँ, अल्लाह से करीब जाऊंगा और वैसे ही कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन बीच में क्या होता है, इंसान भटक जाता, दुनिया में मसरूफियात ऐसे हो जाते, वो केस में जो अल्लाह के पास बेस्ट सोल्यूशन है, और एक बार रस्सी डालते फिर तुम्हारे अंदर तो तुमको फिर जो भूल जाते ना, उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला चाह रहा कि मैं और मतलब कंटिन्यू करूं वैसी, इस वजह से रस्सी डाल लेता था, उसका मतलब ये है, मतलब उसका मतलब ये समझना कि हम लकी है, लकी। ये और कई लोग हैं जो मतलब अपनी जिंदगी में मसरूफ है, जो ऐसे प्लानिंग करके करते फिर वापस चले जाते, अल्लाह ताला रस्सी डाल के कई लोगों को तो छोड़ भी देता हूँ कि तेरे को जो करना है कर ले, तेरे लिए दुनिया जन्नत है, आखिरत में तो तेरे को हिसाब देना ही देना है। ये एक्चुअली बहुत डरावनी केस है जो तुम बोले ना, ये सिचुएशन भी होता है। और मेरे दिमाग में ज्ञान अभी, अब मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे सामने का जैसे अंबानी है, उन्हें तो उसको तो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, उन्हें तो मस्त रह रहा, उसको तो ना आजमाइश है, ना कोई रस्सी आ रही, ना कुछ आ रही, राइट? मैं बोल रहा हूँ जनरल ऐसा नहीं, सही है वो देखो, पहली चीज ये ऑप्शन जो है काफिरों को नहीं, मुसलमानों को है, क्योंकि काफिर को तो अल्लाह ताला जो है, मुसलमानों में कई मुसलमान ऐसे हैं, तो मैं मानी बोल के बोल रहा हूँ, कई मुसलमान ऐसे हैं जो इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग मतलब मस्त रह रहे हैं, उनको फिक्र ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा दिमाग कभी, हम क्योंकि इंसान है, हम अरे उन्हें तो मस्त नहीं आ रहा, उसको तो ना उन्हें नमाज पढ़ता ना कुछ करता, अल्लाह को जानता भी नहीं, लेकिन उसकी लाइफ मस्त चल रही। मैं बोलने का मतलब ये है कि भाई हम उनको नहीं देखना है, हमको वैसे लोग काफी आते हैं अपनी लाइफ में, अपने को गुमराह करते हैं, उनको देखे तो होते और ये सबसे बड़ा फितना है। इसके लिए दूसरी कुरान की आयत खोलना पड़ता, खैर मैं टाइम नहीं है, मैं आयत शॉर्ट में बोल देता हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ अल्लाह ताला कैसे दूसरे लोगों के साथ कैसा सिनेरियो करते। मगर एक चीज साइड नोट पे, बाकी सब साथियों से, इरफान भाई और जो मसीह भाई, इन सब, जैसे मैं शोएब से गुफ्तगू कर रहा हूँ और शोएब जो है सवाल पूछ रहे, मैं बहुत खुश रहूंगा कि आप लोग भी इस तरीके के सवाल मेरे को रोके और टोके, और क्योंकि अब एक जनरल टॉपिक पे हो रहा और आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कीजिए दोबारा, तो उससे क्या होता, अलग अलग एंगल और अलग अलग डिस्कशंस निकलते बाहर, वरना मैं अपनी पॉइंट बोल दे के 1 घंटे में निकल जाता हूँ। जैसा आप लोग बोलने का प्लेटफॉर्म है, कई कुरान क्लासेस में मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं है, सिर्फ वन वे डिस्कशन हो जाता, बोल देते, सुनने वाले सुनते समझते। हमारे पास माशाल्लाह ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं पॉज करूंगा अगर आप, और मैं खुश होऊंगा अगर आप ऐसा पूछेंगे कि ऐसा क्यों, मेरे आंखों के सामने तो वो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, गाली देता, सबको सताता, उन्हें उसको तकलीफ नहीं है, मेरे को क्यों तकलीफ हुई, मेरे जैसे लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? ये सवाल, ऐसे सवाल आना चाहिए। तो आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि ऐसे सिचुएशंस में कि क्या क्या पूछ सकते कि भाई क्यों ऐसा हो रहा, मेरे सामने तो ऐसा हुआ, तो ये मत सोचिए कि ऐसा बोल रहे तो मतलब कितना गंदा आदमी है, देखो अल्लाह के बारे में ऐसा सोच रहा। यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता, यहाँ पे प्लेनली अपन डिस्कस कर रहे हैं एज अ फ्रेंड्स, और जो है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है पॉजिटिवली लेते उसको। तो कोशिश कीजिए कि इसी तरीके से डिस्कशन कंटिन्यू करें, खुसूसन भाई इरफान भाई, मसीह भाई, मुदस्सिर भाई जो पुराने साथी है, वो लोग जो कंफर्टेबल है, जिनके साथ सलाम दुआ चाहिए, आप लोग तो बेफिक्री से जो है पूछिए और रोकिए और टोकिए, और मुझे आगे मत बढ़ने दीजिए जब तक ये बात क्लैरिफाई नहीं हुई, आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए बोल के बोलिए। तो
इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना भाई, जरा इंशाल्लाह तो भी बोलिए, बाकी के लोग खुशी होती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह जरूर जरूर। हम जो अस्सलाम सोच रहे वालेकुम। शुएब भाई एक्चुअली उसका सवाल कर दे रहे, तो इस तरह से जवाब अच्छा। नहीं जा रहा हम लोग को। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बोलिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वो इसके ऊपर एक वो था सवाल, और तो मेरे को जो समझ में आया कि कुफ्र के ताल्लुक से जो यहाँ पर कौन है भाई? मैं जरा मेरा नाम- ऑडियो वीडियो। हेलो हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ आवाज आ रही मेरे को, बोलिए। हाँ आवाज आ रही। मेरा नाम जाकिर है, जी। हाँ दुबई से। मुजम्मिल मेरे को एक्चुअली इनवाइट करे थे अच्छा और उसमें, हाँ तो वही अभी ज्वाइन करा था मैं। अभी ज्वाइन करा था, अच्छा। थोड़ा सा हाँ अभी स्टार्टिंग से तो ज्वाइन नहीं करा था, बीच में ज्वाइन हुआ मैं, यानी कि अच्छा। आज का सेशन। तो इसमें से वो जो बात हो रही थी कुफ्र के ताल्लुक से, कि यहाँ पर कुफ्र का मतलब नाशुक्री है, और नाशुक्री का मतलब यानी कि अपने को जो अल्लाह ताला जो नेमतें दे रहे, तो उसमें वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो समझ में नहीं आया वो का, यानी कि वो कुछ समझ में आया ना, वो थोड़ा मिस हो गया एक्चुअली। अच्छा, तो आप रिपीट कर दो उस पॉइंट को, या थोड़ा और एक्सप्लेन करूं? वो रिपीट कर दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा मिस हो गया एक्चुअली, वो नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा मिस हुआ वो। भाई आदिल भाई, वो आपका रिकॉर्डेड रहता ना सेशन, तो अब रिकॉर्डेड सेशन जब आप भेजते तो सुन ले सकते भाई, जो भी मिस हो गया। हाँ अच्छी ये बात। वाला हाँ, ये सब टाइम है, ऑलमोस्ट 1 आवर के ऊपर चले गए हम लोग, तो जल्दी रैप अप करना है। मगर ये सेशन हर चीज ऑडियो अपलोड हो जाती है नेक्स्ट डे, उसकी कॉपी तो आप उसको वहां पे। तो ठीक है, गोइंग बैक, शोएब भाई का जो लास्ट सवाल था कि जब मैं ये बोलना चाह रहा था कि हम लोग तो ये वाले ग्रुप में फॉल नहीं करते जो अल्लाह को धोखा देना चाहते, मगर अपने साथ ऐसी गलती हो जाती कि जब अपन तकलीफ में आते अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा रहती, शिद्दत रहती, मगर जब तकलीफ से निकल जाते तो उतनी अल्लाह की तरफ जाने का टाइम नहीं मिलता, और नेमतों जो अल्लाह ताला तकलीफ निकाल दिए उसकी नेमतों में बिजी हो जाते, और अनजाने पन से अल्लाह को थोड़ा कम भूल जाते। हालांकि अल्लाह ताला तुम्हारे को डबल अपने तरफ बुलाना चाह रहा और अल्लाह ताला इंतजार कर रहा, तो अनजाने में, काहिली में, भुलक्कड़पन में ऐसा हो जाता। तो अल्लाह ताला फिर क्या करता है ऐसे सिचुएशन में? अल्लाह ताला क्या करता, और एक अपॉर्चुनिटी देता। तो कई बार तो अल्लाह ताला वेट करता, इंतजार करता, क्योंकि इंसानी नेचर है भूल जाने की। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने अल्लाह ताला अपने नेमतें कंटिन्यू करके देते रहता, ताकि अल्लाह ताला क्या चाहते, ये नेमत नहीं तो और एक नेमत, इससे अच्छी नेमत देता हूँ। ये नेमत देने की वजह से तो भी इन्हें शायद खुश होके जो है अपने तरफ वापस आएगा, मेरे तरफ आएगा, क्योंकि देने वाला तो मैं हूँ, और नेमतें देता। मगर कई बार जो है उस टाइम में इंसान पलट के अल्लाह की तरफ वापस चले जाता। मगर अगर इंसान फिर भी भुलक गया और टाइम कम है और उसकी उम्र जल्दी चले जा रही और कीमती जवानी का वक्त चले जा रहा, फिर अल्लाह ताला और एक बार रस्सी डालता, और एक बार रस्सी डालने से इंसान फिर जब समझ जाता, अब मा तौबा, अब तो मैंने गलती करता, अब तो मैं अल्लाह की दीन की तरफ वापस पलटने वाला हूँ, मेरा पर्पस जिसके लिए है। और तकलीफ क्यों डाल रहा अल्लाह ताला, रस्सी क्यों डाल रहा? ताकि तुम जन्नत में आओ, और तुम एंजॉय करना चाह रहे तो दुनिया में क्या एंजॉय करते, जन्नत में एंजॉय करो, तो जन्नत के लिए आओ। तो अल्लाह ताला का भी एक्चुअली कुछ भी खुद का मकसद नहीं है, तुम्हारा भला करना है, तुम्हारे को जन्नत पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला को एक्चुअली कुछ लेना नहीं है उस तरीके से, और अल्लाह ताला तुम्हारे को जहन्नुम की आग में डाल के जलाना भी नहीं चाहता। तो अल्लाह ताला इसकी वजह से कई बार नहीं, सेकेंड टाइम फिर तकलीफ आती अलग शिप में। तो एज अ मुस्लिम, एज अ दोस्त, एज अ मोमिन भाई, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जब ऐसा एपिसोड हो गया, रस्सी एक बार हो गई फिर भी चेंज नहीं हुई, फिर रस्सी नंबर 2 आई, तो जब उसको समझाना, नहीं अल्लाह ताला तेरे को खींच रहा अपनी तरफ, अल्लाह ताला ये जो एंजॉयमेंट से तेरे को बाहर निकालना चाह रहा, खत्म नहीं करना चाह रहा, एंजॉयमेंट बंद मत करो बोल रहा, बस जो है उसको जरा कट करो,
उससे थोड़ा डी अटैच हो, डिटैच हो, और थोड़ा अल्लाह अपनी तरफ बुला रहा है, इसलिए तेरे को बुला रहा बोल के हम एज अ फ्रेंड भी जो है गाइड करना अपने मुस्लिम ब्रदर्स को, और उसको दीन की तरफ हाथ पकड़ के चलाना। अगर आप ऑलरेडी दीन की तरफ है तो आप उसको रास्ता आसान कर सकते, उसको मस्जिद में लेके जाने के लिए ऑफिस में बैठे बैठे चलो भाई तुम भी चलो बोल के लेके जा सकते, नहीं तो देख अल्लाह ताला फिर तीसरे रस्ते डाला तो बहुत तकलीफ में आ जाएगा बोल के। तो ये हमारा मकसद होना चाहिए। दूसरा सवाल जो शोएब भाई का है कि हम जो है ये देखते कि भाई हमसे गए गुजरे लोगों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे साथ कई को हो रहा। हालांकि हम वैसा नहीं सोचना चाहिए, हम सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला तो उससे नफरत कर दिया, उस गुनेगार को, मुसलमान है, नमाज भी नहीं पढ़ता, पूरे जिना करता, शराब पीता, उसको कुछ भी आजमाइश नहीं दे रहा, तो मतलब अल्लाह ताला उसके ऊपर गिव अप कर दिया, मतलब अल्लाह ताला लिटरली उसको नफरत कर दिया और उसको जहन्नम की आग में डिसाइड कर दिया। मेरे को नहीं करा इसलिए मेरे को तकलीफ दे रहा, इसलिए मेरे को रस्सी डाल रहा, इसलिए मेरे को खींच रहा। अपनों को खींचते ना, दूसरों को तो दूर करते। तुम दावत में शादी में जाके बैठो, अपनों को बाजू बिठा लेते ना। अब समझ में, अगर शादी में आया और शोएब दिखा तो शोएब मेरे बाजू आप नहीं बोलते, अपने अपने बाजू रहते, दूरों को दूर हटो, दूर हटो भाई, वहां से दूर से सलाम अलैकुम। तो अल्लाह ताला तुम्हारे को अपने बना के तुम्हारे को अपने तरफ खींच रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ही देखा और तुम्हारे कैरेक्टर में वो शराफत है बोल के, अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है बोल के तुम्हारे को खींचने के लिए नए नए तरीके दे रहा। कभी रहमतें दे रहा, कभी जहमतें दे रहा, कभी नेमतें दे रहा, कभी अजाब दे रहा, ताकि नेमत के जरिए तो भी आएगा, नहीं तो अजाब के जरिए तो भी आएगा, तकलीफ के जरिए तो भी आएगा, मगर कोशिश जारी है। क्यों कोशिश जारी है? क्योंकि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता। फिर उसका क्या है, अंबानी है या मुसलमान करोड़पतियां हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, गोल्ड के आईफोन खरीद रहे हैं, गोल्ड के कारा हैं, उनको कहीं को तकलीफ नहीं देते। वो लोग तो मेरे से भी गए गुजरे हैं। नहीं भाई, गए गुजरे नहीं, पूरे को गए हैं, वो पूरे को गॉन किए थे वो, इसलिए अल्लाह ताला गिव अप कर दिया है उसके बारे में। तो उसके लिए हम रादर अपने अंदर ये नहीं सोचना कि मैच मिला था क्या, अरे तुम्हारे को चूज करे, तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी दिए तो तुम जन्नत में जा सकते, वो देखो ना तो तुम लकी है। रादर अनफॉर्चुनेट नहीं समझना, अरे मैच मिला था क्या, उसको नहीं आते, हर साल मेरे कुछ अजाब आते, क्योंकि हर साल आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे ईमान के लेवल पे, इसकी वजह से आपको करना पड़ रहा। तो आपको अब आखिर में अजाब नहीं होना, तकलीफ हर साल की एक टॉर्चर नहीं होना, तो क्या करना, आप हर साल अपने आप को, अपना ईमान अपग्रेड करो, अपने नेकियां अपग्रेड करो। पहले 2 रकात नमाज पढ़ते थे तो नफिल, अब 4 पढ़ो, 6 पढ़ो। पहले 1000 रुपए खैरात करते थे, अब 10,000 रुपए खैरात करो। अपग्रेड करते रहो तुम्हारे ईमान को, तो तुम्हारे को फिर अल्लाह ताला खींचता इसने। कई को बोल तो भाई अल्लाह ताला तकलीफ दिया ताकि तुम अपग्रेड होना, तुम ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जा रहे ईमान में, तुम हर साल बेहतर मुसलमान बन रहे, हर साल और कुरान को समझ के अपनी जिंदगी में अमल कर रहे, तुम ऑटोमेटिकली अपग्रेड। अब देखो मैनेजर है, एक एम्प्लॉई से बोलता भाई तेरे एक्सपेक्टेशन, तेरे हर साल सैलरी बढ़ रही तो हर साल तो काम भी ज्यादा करना। मैनेजर एम्प्लॉय बोलता जा भाई जा, मैं कहीं काम कर रहा हूं। अगर उन्हें वाकई में अपने आप हर साल ज्यादा काम कर रहा, बेहतर काम कर रहा, तो मैनेजर कहीं को उसको लाके बुला के डांटेगा। उन्हें अब हर साल एक्सपेक्ट नहीं रहती कंपनी में। अब लास्ट ईयर आप $1 मिलियन का सेल करे, अब ये साल $1.5 मिलियन का सेल करना, उन्हें ऑटोमेटिकली $2 मिलियन का सेल करा, तो उसको कहीं को नथाड़ेगा, उसको कहीं को गिनेगा, उसको कहीं को वार्निंग देगा, रादर उसको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड देगा। तो अल्लाह ताला भी यही चाह रहे कि तुम अपग्रेड होना, तुम्हारा ईमान बढ़ना। हाँ, तुम 20 साल के थे, 21 साल के थे, जब खाली नमाज पढ़ते थे चलता, उम्र कम थी, मैच्योरिटी नहीं थी, मगर अब एक अलग एक्सपेक्टेशन है। अब अल्लाह ताला की और नेमतें एंजॉय करे और सक्सेस मिली और प्रॉब्लम सॉल्व है। नहीं, अब देखो इसमें जो है क्या सक्सेस मिली, मेरे को तो सिर्फ 1 लाख रियाल मिले, उसको तो 2 लाख रियाल मिले, तो मेरे को तो नेमत नहीं मिली। ऐसा बोल के नेमतों को झुटलाओ मत। तो क्या करते अल्लाह ताला, फिर वैसा बोल तो 1 लाख रियाल भी खींच दे, जाओ नेमतें खींच लेते वापस। शुक्र नहीं करे और उल्टा कंप्लेन करे तो अल्लाह ताला बोले वो हाई से भी दे दो, जाओ वापस जाओ, तुम जाओ पुरानी जिंदगी में जाओ, तुम्हारे को उठाए से तुम नहीं है ना। हमेशा ऊपर वालों को से चेक कर ले रहे ना अपने आप को, नीचे वालों से अपने आप को चेक नहीं कर रहे ना। तुमको कितना दिए तुम्हारे को उसका एहसास नहीं है, जो नहीं दिए उसके ऊपर अफसोस करते रहते, जो दिए तो चीजों को ऐसे लोगों का तो कुछ भी नहीं हो सकता बोले। मगर एक तीसरी चीज बोल के मैं टॉपिक खत्म करूंगा, बहुत टाइम हो गया, एक टाइम हो जा रहा। एक आयत भी मैं लास्ट टाइम जब मेरे को किडनी स्टोन हुआ था, मैं आपको एक आयत भी पढ़ाया था, जिसमें वो सूरह फुस्सिलात की आयत थी, जिसमें अल्लाह ताला बोलते हैं हर साल 2 बार तुम्हारे को तकलीफात आती,
तुम क्यों गौर नहीं हाँ। करते कि क्यों आ रही वो आयत? इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, आज क्यों आ रही वो, साल में 2 बार क्यों आ रही, 2 बार रस्सी क्यों पड़ रही? क्योंकि तुम अपग्रेड नहीं कर रहे अपने ईमान को, वहीं के वहीं चटके हुए, वही लेवल पे जी रहे। हालांकि नेमतें बढ़ रहे, तुम बच्चे तुम्हारे बड़े हो रहे, तुम्हारी बैंक बढ़ रही, बैंक की सैलरी बढ़ रही, लाइफ सुकून से बढ़ रही, 1 साल और अच्छा सेहत से जिए, कोरोना से भी बच के निकले, मगर अपग्रेड तो नहीं करेंगे, ईमान वहीं का वहीं। अल्लाह के मामले में कंजूसी, इतनी सी इबादत करते, इतनी नहीं की करते। मगर डरावनी एक आखिरी पॉइंट, अब डरावनी सिनारियो जो तुम डिस्कस करे, कुछ लोगों के साथ अल्लाह ताला क्या करते हैं बहुत खतरनाक है। अल्लाह करे हमको उस ग्रुप में ना डाले, वो आयत हम पे अप्लाई ना हो। आयत पढ़ना चाह रहा था, मैं पढ़ाना चाह रहा था, मगर टाइम कम है, मैं फास्टली उसको बोलते के रैप अप कर दूंगा। एक आयत बहुत खतरनाक है कि हम, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हम लोगों को एक तकलीफ देते, आजमाइश देते, और हम इंतजार करते कि वो तकलीफ को निकलने के बहाने वो हमारे पास आए और हमसे माफी मांगे और हमारे मोहब्बत करे, हमारे दीन से मोहब्बत करे, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, ये सब चेंजेस आए। मगर अल्लाह ताला बोल रहे वो इंसान में चेंज नहीं आ रहा, आदमी चेंज नहीं होता, डॉक्टरों के पीछे जा रहा, नए नए बिजनेस खोल ले रहा, मगर जहाँ पलटना है उधर नहीं पलट रहा, रूट कॉज के पास नहीं जा रहा, दूसरे सॉल्व कर ले रहा, दूसरे दरवाजों पे जा रहा, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल गरीबी है या बच्चे नहीं हो रहे, डॉक्टरों के पास चले रहा, लाखों का पैसा कर दे रहा, ये बाबा के पास चले रहा, सब कर ले रहा, अल्लाह के पास नहीं आ रहा। तो अल्लाह ताला बोलते इंतजार करके तकब्बुर है, अपने अक्ल को मारता। तो अल्लाह ताला क्या करते मालूम, फिर एकदम डरावनी सिनारियो सुनो, कुरान की आयत है डायरेक्ट, उसके बाद में अल्लाह ताला क्या करते, हम वो तकलीफ उसको हटा देते और पूरे नेमतें उसकी जिंदगी में उतार देते, एकदम उसको हर चीज सक्सेसफुल टॉप नॉच बनाए थे, और उसको हम वही रास्ते में फेंक देते और उसको सीधा जहन्नुम की आग में डाल देते। अरे रे 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 अरे, तो अल्लाह ताला बोले चांस दिए, टाइम दिए, नहीं पलट रहे, नाम भी नहीं ले रहे, मतलब जानेमाज भी नहीं बिछा रहे, अल्लाह के सामने मांग रहे भी नहीं, बस वही क्या अपने कैलकुलेशन में पड़े हुए हैं, अपने हिसाब में ऐसा वैसा। तो अल्लाह ताला बोल रहे टाइम दिए, नहीं हुआ, नहीं चेंज होता, इसको उसको अल्लाह के पास पलटना मालूम ही नहीं है, इसको अल्लाह क्या है नहीं मालूम। तो अल्लाह ताला ओके डन, इसका जरूरत नहीं है, इसका डिसीजन हो चुका है, अब इसके पर कोई चेंज की उम्मीद नहीं है, इन्हें पत्थर के जैसा रॉक बना हुआ है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सीधा उसको नेमतें दे देंगे, नेमतों पे नेमतें, एक ने हर नेमतों का दरवाजा खोल देंगे और वो नेमतें उन्हें एंजॉय करते रहेगा, मजा लेते रहेगा, और ये ख्वाब गफलत में रहेगा कि मेरी यहाँ की भी लाइफ अच्छी है, हर चीज परफेक्ट है, और एकदम बगैर इबादत करे हुए, बगैर तौबा करे हुए उसका इंतकाल होता और सीधा जहन्नुम में डाल देते हैं। अल्लाह ताला के लोगों को हिदायत बोल के भी नहीं चाह रहे, क्योंकि ये लोग डिजर्विंग ही नहीं है। तो ऐसे जो डिजर्विंग लोग नहीं है, उन लोग गौर व फिक्र कब करते हैं, तकलीफ में, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को तकलीफ ही नहीं दी, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते भी नहीं आदमी गौर व फिक्र करे, उतना उसके ऊपर अल्लाह ताला उसके ऊपर उम्मीद छोड़ दिया, इसलिए उसको तकलीफ भी नहीं दिया। तो मतलब अगर अल्लाह ताला तकलीफ दिया तो मतलब अल्लाह ताला तकलीफ के बहाने क्या एक्सपेक्ट कर रहा, गौर व फिक्र, अपने गिरबान में झांकना। तो ये मकसद होता, और ये मकसद की उम्मीद नहीं है तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, पैसा पैसा। इसलिए जब उमर रज़ी अल्लाह ताला का ईमान देखो, जब इराक फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, सीरिया फतह हुआ, और ऊंटों के ऊपर दौलतें आने लगे, हीरे जवाहरात आने लगे, उसको देख के रोते थे उमर रज़ी अल्लाह ताला, कहीं ये वो तो नहीं कि ये हमारी कौम बहुत गुनाह में गुजर गई, तो इसलिए अल्लाह ताला हमारे दौलत तो नहीं दे रहा, बोल के गौर व फिक्र करते थे। हम गौर व फिक्र करना कि ज्यादा सक्सेसफुल भी हो गए तो बोलना ये अल्लाह का मेरे को छोड़ कर, एटलीस्ट सोचना, गौर फिक्र करना उस पे। तुम्हारा म्यूट हो गया आदिल माइक। हेलो, हाँ अभी आ रहा था। तो वो जरा कॉल आया तो मेरा होल्ड पे चल। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक और इसके अलग अलग सिनारियोस के ऊपर बहुत गौर व फिक्र करना है, और खाली एक आयत की तरह आयत पढ़ के नहीं सोचना, आयत को बंद कर देके छोड़ देके कल दिन में कभी बैठे हुए कार चला लेते हुए सुमसाम रोड पे सोचो इस आयत पे कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ, कभी ऐसा 1 साल में 2 इंसिडेंट्स हुए क्या, अच्छा कभी अल्लाह ताला रस्सी डाला तो मैं कैसा निकला बाहर रस्सी से, फिर मैं क्या चेंज लाया। तो ये गौर व फिक्र करने की, खाली अंडरस्टैंड करके इसके टेक्निकल एस्पेक्ट स्टडी कर लेना है क्लास में 1 आवर में, मगर ये तदब्बर करने के लिए आयतें हैं, ये आयतों को फिर गौर व फिक्र करके जिंदगी में कुछ इफेक्ट लाए तो मतलब है, वरना पढ़ो ना पढ़ो फर्क नहीं। तो
یہ تو اسی پوائنٹ پہ اب ہم لوگ انشاءاللہ پھر ایک کلاس کو یہاں پہ ختم کریں گے، انشاءاللہ پھر دوسرے آیتوں کو لے کے آئیں گے پھر.